welcome you all in my YouTube channel PsychTalk, video sessions of psychology classes. Today I will be teaching a very important topic of psychology, memory. But before I start teaching, I request to all of you, please subscribe or like this channel and also press the bell icon so that you all can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel. Dear students, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति हमारे मानसिक अंगों का एक बहुत ही अहम भाग है. लाइक अवर मेमोरीज आर अ मेजर पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी. जिस तरीके से हमारे शरीर में हमारी धड़कन काम करती है, ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि में हमारी स्मृति काम करती है. माना आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में अचानक से आपकी धड़कन धड़कना बंद हो जाए, फिर क्या होगा? यू विल लॉस्ट योरसेल्फ. ठीक इसी प्रकार यदि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो या कहीं नहीं भी जा रहे हो, आप कहीं किन्हीं लोगों के साथ हो और अचानक से आप सब भूल जाए, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, व्हाट हैपेंड? You will lose, of course. So, whatever we remember and whatever we forget depends on our memory. For example, we can say like language, sight, hearing, perspectiveness, learning and meditation. Memory is also a major intellectual capacity of the brain. Whatever is stored in our brain in the form of experience, information and knowledge. And this is all organized in the various forms of memory. The study of this ability of the human brain is a fairly broad subject. It is mainly studied under the psychology, neurology and medicines. Like some kind of questions always comes in our mind, like how does our memory work and how can we remember anything? How is memory stored in our brain? Why do we forget something and forget things? And sometimes question like we want to forget something but we can't, and we want to retain something but we can't. So in this upcoming video I will tell you that how these things are happening. So basically these basic questions have always comes in the human mind and efforts have been made from time to time to answer them. All of us have the ability to remember old things. We keep remembering a person, place, event and situations. Learn something from them and then further secure them in form of experiences and knowledge. Like we try to connect some stories, okay, and without even stories we try to revise. Like if we learn any chapter or any class, we went any class, we just through the revision try to retain all these things. Our further behavior is controlled by what we have learned. Like if I know you, I remember, I recognize you, I'll do behavior accordingly. And if I don't, I just don't care about who you are. Okay. And sometimes we try to recognize you that who you are. So if we talk about the meaning and definitions of memory, we can say in Hindi like स्मृति का अर्थ है किसी चीज़ को याद रखना. To learn something is known as memory. This is a kind of mental process जिसका आधार है अर्जित अनुभव. इसका जो पुनरुत्पादन है, रिप्रोडक्शन, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है. ओके. लाइक कभी कभी हम कुछ किन्हीं चीज़ों को एकदम भूल जाते हैं, पर जब उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं तब हमें वो चीज़ याद आ जाती है. ओके. सो वुडवर्ड कहते हैं कि इट इज़ अ मेमोरी टू रिमेंबर व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन. यानी कि जो बात पहले की जा चुकी है हम उसी को जब याद करते हैं तो वो क्या है? हमारी स्मृति. प्रोफेसर रायबर्न कहते हैं कि वी हैव द पावर टू एक्यूमुलेट आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम बैक टू द realms ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर सम टाइम एंड दिस इज कॉल्ड स्मृति. यानी कि अपने अनुभव को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद जो हमारी चेतना होती है उसके क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति है हमें होती है, हम उसको क्या कहते हैं? स्मृति. आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम पढ़ेंगे 3 states ऑफ माइंड: consciousness, subconsciousness and unconsciousness, okay, which will help us to know more about memory, and through that thing we will learn that how these things help us to retain anything.
Okay, and we will know what is consciousness state of mind, what is unconsciousness, and what is subconsciousness state of mind. So let's come back to the topic of memory. We are talking about definitions. James कहते हैं कि memory is the knowledge of an element of an event that we have not thought about for some time, but about which we have the consciousness that we have already thought or experienced it. See, the memory जो चीज़ है वो ये हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं memory में. We are not doing anything new. We just try to retain whatever we have learned before, whatever we have know before. We just try to retain in our mind, which will help us to keep remembering. Okay. So इसमें थी उस घटना या तत्व का ज्ञान है जिसके बारे में हमने कुछ समय तक सोचा नहीं है, पर जिसके बारे में हमको ये पता है या हमको ये ज्ञात है कि हम उसका विचार या अनुभव पहले कर चुके हैं. जैसे हम कहते हैं हमको कोई चीज़ याद आई. जब कोई चीज़ हमको याद आती है, दिस याद आना क्लियरली मीन्स कि हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं. ओके. यदि हम किसी चीज़ को नहीं जानते तब हम उसको पूरा सीखेंगे, पर जब हम किसी चीज़ को जानते हैं फिर हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं. First say we can take an example of examination. our examination. हमारे एग्ज़ाम्स में we are not doing anything new. हमको जो कुछ पहले सिखाया गया है हम सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करते हैं. ओके. जो कहीं भी हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में है, वी ट्राई टू रिकवर देम इनटू अवर कॉन्शियस माइंड ताकि हम उसको लिख सकें एग्ज़ाम में. ओके. सो दिस इज़ I think the best example or classic example of memory. Now we will discuss the part of memory. Okay. So as we know, this is a kind of tough process, and to complete this process or step, here we have four parts, which through a formula we can say L plus triple R. The first L known as हम जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं, and the thing we want to learn something. ठीक है. जब पहले हम उस चीज़ को सीखते हैं, like हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को सीखते हैं. जैसे साइकिल चलाना हम सबसे पहले सीखते हैं, और फिर जब कोई हमारे पास नहीं होता है तब जब दोबारा हम उस चीज़ को सीखते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें वो चीज़ बताई गई है. ओके. धारण करना, रिटेंशन. जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तब हम उस चीज़ को रिटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको भूल ना जाए. और रिटेंशन कैन हैव मैनी काइंड्स. हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको पूछ सकते हैं एक दूसरे से. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं. वी कैन टेक एन टेस्ट, वी कैन टेक सम टेस्ट और एग्जाम्पल्स और रिविजन्स. ओके. The third one is recall. When we have nothing, we have no one, we try to recall that what was that, what was our teacher told us, what was our parents told us, what they taught us. Okay. So किसी चीज़ को जब हम सीख लेते हैं और जब हम उसको अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, हमारा रिकॉल करना, किसी चीज़ को रिकॉल करना. ओके. एंड द लास्ट वन इज़ रिकॉग्निशन. जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम उस चीज़ को पहचानते हैं. पहचानने का मतलब ये है कि आने वाले समय में हमें आगे इसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए. फर्स्ट से आप किसी पार्टी में जाएं या किसी भी जगह जाएं, वहाँ आपके पेरेंट्स आपको किसी अपने फ्रेंड से मिलवाएं या किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाएं जो इन फ्यूचर आपके काम का होने वाला हो, तो वो आपको क्या बोलेंगे, इनसे मिलो, जानो, इनको पहचानो. ठीक है. ताकि आगे कभी कोई ज़रूरत हो तो इनसे हेल्प हो पाए. जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली याद रखते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं इसको पहचान लो ताकि आगे आने वाले समय में आपसे गलती ना होने पाए. एंड फॉर द शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल, वेरी शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल इज़ दिस कि टीचर आपसे कहता है इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, यानी कि मैंने सिखा दिया, आप इसको रिकॉल कर लो, रिटेन कर लो, पहचान लो ताकि एग्ज़ाम में आपसे गलती ना होने पाए. Okay. So after discussing the general meaning, definitions and part of memory, now I'll tell you some kind of rules which is given by B.N. Shah. So there are 3 rules given by B.N. Shah which will help us to make very clear about memory, that what is it. So the first one is rule of habit.
ओके, इसमें होता क्या है कि इस नियम के अनुसार जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, वी कैन से द रिवीजन, ओके, द रूल ऑफ रिवीजन, ओके, तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप जो है वो इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना विचारे उसको याद करने की हमें आदत हो जाती है। एग्जाम्पल 1 2 3 ABCD या टेबल, इनको बोलते समय जब आप बोलना इनको शुरू करते हैं तब आपको किसी भी चीज़ तरह की सोचने की शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको सोचना पड़ेगी कहीं कोई गलती ना हो जाए, आप बिना विचारे इसको आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत हो चुकी है। जैसे बचपन से मम्मी को मम्मी, पापा को पापा, भाई को भाई, बहन को बहन बोलते हैं, और फिर हम बिना विचारे, बिना जाने, बिना समझे कह सकते हैं हाँ ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मा है। क्यों? क्योंकि हमको बिना सोचे समझे उस चीज़ की आदत हो चुकी है। सो दिस इज द रूल ऑफ हैबिट। द सेकेंड रूल ऑफ मेमोरी गिवन बाय BN Jha इज रूल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक कंटिन्यू आते रहते हैं, अतः हमें उनको स्मरण करने के लिए किसी क्षमता का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ बार बार कर रहे हैं, मान लिया आप अपने घर से अपने स्कूल तक बार बार जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, तो क्या आप अपने घर से स्कूल तक जाने का रास्ता भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी है, ओके। द थर्ड वन इज रूल ऑफ कोरिलेशन, परस्पर संबंध का नियम। इस नियम को हम सहचर्य का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एक अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित कर देते हैं तब उनमें से किसी एक का स्मरण होने पर दूसरे का स्मरण हमें स्वयं ही हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने कोई चीज़ याद की और उससे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ याद की, तब उसको देखकर हमें वो दूसरी चीज़ पहले ही याद आ गई, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें बहुत ही कैजुअल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसको सभी लोग जानते हैं कि मान लिया हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और हमें हमारा बहुत बचपन का फ्रेंड राम और राम जैसा दिखने वाला श्याम मिल गया, ठीक है। तो श्याम को देखकर हमें कौन याद आ जाएगा? राम याद आ जाएगा। या कभी किसी चीज़ को हम करते करते कह सकते हैं, लाइक जब हम सेम तरीके की कोई बाइक ड्राइविंग करते हैं, सेम तरीके की कार चलाते हैं, तो बोलते हैं हाँ इस तरीके की कार हम पहले चला चुके हैं। या कोई स्टोरी जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक आपका एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस से रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने जो है इस तरीके के चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है या आप ऐसे लोगों को पहले से जानते हैं, ओके। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि व्हाट आर दी स्पेशल मेथड्स टू रिटेन समथिंग, टू लर्न समथिंग, टू मेमोराइज समथिंग। सो basically some psychologists given some kind of methods which is we can say general method, but इनका प्रयोग करने से we can save the time, okay. So we have some kind of methods to memorize something as follows. The first one is पूर्ण विधि, complete method. complete method में क्या होगा, आप किसी चीज़ को एक ही बार में पूरा याद कर लो, like teacher gives you some kind of assignment or some kind of question and you will learn it just completely, ठीक है। सी ये जो हम आपको विधियाँ बताने वाले हैं ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अप्लाई हो सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको यदि पूर्ण विधि कंप्लीट सूटेबल है तो वो बगल वाले को भी हो, ठीक है। हर स्टूडेंट पर या हर पर्सन पर मेमोराइज करने की हर विधि अलग अलग तरीके से काम करेगी। इट्स ऑन यू कि आप के ऊपर कौन सी विधि सूट कर रही है। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी विधि ले सकते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज पूर्ण विधि, किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली हम लोगों ने लर्न कर लिया। द सेकेंड इज खंड विधि यानी कि ब्लॉक मेथड, लर्न विद पार्टीशंस, किसी चीज़ को हमने आधा याद कर लिया फिर आधा याद कर लिया फिर उसको एक तरीके से पूरा याद कर लिया। द थर्ड इज मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। इसमें क्या होगा कि हम किसी चीज़ को मिक्स करके याद कर रहे हैं, आधा ये याद कर लिया आधा ये याद कर लिया फिर उसको पूरा मिक्स कर दिया। तो फोर्थ इज प्रगतिशील, प्रोमोटिव मेथड। तो इसमें क्या होगा, हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली याद करते जा रहे हैं, जैसे पहले एक लाइन याद कर ली फिर फर्स्ट सेकंड 2 लाइन याद कर ली फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी लाइन याद कर ली। इससे क्या होगा, हमारा पीछे का जो रिवीजन है वो चला जाएगा। इसके बाद है अंतरयुक्त विधि, डिफ्रेंशिएटिव मेथड जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तब एक प्रॉपर डिफरेंस आप लोगों ने खुद से उसमें क्रिएट किया हुआ है, ठीक है।
सिक्स्थ वन इज अंतहीन विधि, एंडलेस मेथड, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप किसी भी विधि को मिक्स करके उसमें पढ़ सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स मेथड। सक्रिय विधि, एक्टिव मेथड, लाइक एक बार आपने पढ़ना शुरू किया तो आप उसको कंटिन्यू लगे हुए हैं जब तक आपको वो कंप्लीट ना हो जाए, याद ना हो जाए। निष्क्रिय विधि, इसमें क्या होगा, आधा भी पढ़ लिया, अब मन नहीं लग रहा, आधा कुछ समय बाद पढ़ लिया। अब ऐसे ही होगा जब आप उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो भले आप निष्क्रिय हैं, ठीक है, और आपका माइंड जो है वो उस समय काम नहीं कर रहा, यू आर नॉट इन मूड टू लर्न और रिटेन समथिंग, बट फिर भी वो चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। नाइन्थ वन इज रटने की विधि, ठीक है, एक वो आपने गाना सुना होगा, पटक पटक के सर गिरा दे कॉलेज की दीवार। सो इसमें क्या होगा, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि लिखा क्या है, आप बस उसको रट रहे हैं। जब आप उस चीज़ को रट रहे हैं तब आपको किसी और चीज़ को समझने की ज़रूरत ही नहीं कि एग्ज़ाम में सिर्फ रटा हुआ काम आता है, ठीक है। समझ भी आपकी काम आती है, पर समझ की केवल इतनी है कि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगी, आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, पर आपने भी रटा हुआ है तो आप बिना सोचे समझे उसको आराम से लिख सकते हैं। बट हाँ, कहीं किन्हीं चीज़ों पर हमें रटने के साथ साथ समझने की भी ज़रूरत है। हियर वी आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मूवी। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम राजनीति, जिसमें कैटरीना कैफ ने एक स्पीच होगी जो कि हिंदी में थी और उसने बिना समझे उसको याद कर लिया था और बोल दिया था, एंड शी डिड इट वेल, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम 3 इडियट मूवी। आप सभी को सीन सारा याद आ गया होगा, सो आई डोंट थिंक हमें आपको बताना पड़ेगा। तो ये होता है सिर्फ रटने में, ठीक है। कभी कभी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है और कभी कभी आपको मजाक भी हो सकता है। द 10th इज निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मैथड, लाइक वी ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ऑब्जर्विंग, फ्रॉम अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक हम लोग कहीं जाते हैं तो जब हम लोग किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे खाना बनाया और हम लोगों ने लिख दिया, दाल डालनी है, चावल डालना है, ये डालना, वो डालना है, जिस भी चीज़ का हम लोगों ने मैथड लिया है, जैसे चाय बनाने का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे पास यदि लिखा हुआ मैथड है तो उससे बेस्ट यदि किसी को चाय बनाता हुआ देख ले तो दैट इज़ फार बेटर। 11th इज क्रिया विधि, ओके, एक्टिविटी, जिसको अभी हमने जस्ट आपको बताया। निरीक्षण में क्या होगा, कोई और कर रहा है और हम देख रहे हैं, और क्रिया विधि में क्या होगा, हम उसको खुद करके देख रहे हैं, ओके। 12th इज विचार सहचर्य विधि, ठीक है, यानी कि ओपिनियन कोरिलेशन मैथड, यानी कि आप अपने खुद के विचार जो है सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू विल ट्राई टू लर्न और रिटेन समथिंग। इसके बाद है साभिप्राय विधि। साभिप्राय मतलब मीनिंगफुल मैथड, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको रट भी रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है सबका कंक्लूजन है, ठीक है। सो द लास्ट और इम्पॉर्टेंट इज स्मृति प्रशिक्षण, यानी कि मेमोरी ट्रेनिंग। स्मृति की उन्नति के लिए प्रशिक्षण या अभ्यास, जिसको हम अभी बार बार बता रहे हैं, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ पर आई हैव सम काइंड ऑफ रूल्स, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को याद कर सकते हैं या इसकी ट्रेनिंग क्या है। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन, विल। यदि आपकी विल किसी चीज़ को करने की है, स्ट्रॉन्ग विल किसी चीज़ को करने की है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को करने का, तो आप उस चीज़ को सीखे बिना नहीं रह सकते, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो पहली बार सीखते हैं, बट यदि आप स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड है, स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड है, तो आप उस चीज़ को आराम से सीख सकते हैं। द सेकेंड वन विच इज़ हेल्प यू इज़ क्लियर नॉलेज। यदि आपको जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसकी यदि आपको क्लियर नॉलेज है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। द सेकेंड इज़ आपको परफेक्ट नॉलेज है कि हाँ, ये चीज़ टफ भी हो सकती है, आई नो व्हाट काइंड ऑफ टफनेस आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है। थर्ड इज प्रोत्साहन, यानी कि मोटिवेशन। सी, द मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल बिहाइंड एवरी टॉपिक ऑफ लर्निंग और इन एनी प्रोसेस। लाइक इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, motivation by from self motivation or from others are very important. Like if you are learning something from your parents, motivation from the parents are very important. If you learn something from your teacher, motivation given by a teacher are very important. Teachers are very important. And if you are doing something by yourself, the self motivation are very important. And here in 3 points, 3 kind of motivations, there are 3
3 essentials of motivation. Self motivation are so important, where no one is there to motivate you. You can self motivate yourself. Okay. The fourth one is पहले से समझना. If I know something from before, from earlier, if I know something or if I understand something, so I can do something better. ठीक है. The fifth is try to grow up your interest. Try to come up with your interest. यदि आप किसी चीज़ में आप रुचि उत्पन्न करते हैं, आप किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका नहीं है फिर भी आप शो करें, ठीक है. बट इफ़ यू वांट determine about something, if you have a clear knowledge about something, if you are self motivated, or if you know something earlier, you should have interest of that thing. Okay. Sixth is if something is depends on your earlier knowledge. यदि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है. For say यदि आप बाइक चला रहे हैं तो सब लोग बोलते हैं कि यदि आपने साइकिल चलाई है तो आप बाइक को आराम से चला सकते हैं, ठीक है. आप समझ गए होंगे इससे कि यदि आपने साइकिल चलाई तो आप बाइक को आराम से चला सकते हैं. सो बाइक को चलाना इज डिपेंड्स अपॉन योर साइकिल चलाना, ठीक है. स्मरण के अधिक अवसर, चांसेस, मोर एंड मोर चांसेस, मोर अपॉर्चुनिटीज टू रिटेन समथिंग, ठीक है. जैसे क्लास में आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट माई क्लासेस वेयर आई एम लर्निंग समथिंग, माई माइंड इज डूइंग वन थिंग. जैसे उन्होंने आज कोई चीज़ पढ़ाई और जब सेकेंड डे वो पढ़ाएंगे तो जो उन्होंने आज पढ़ाया वो उसको भी रिवाइज़ करेंगे. देन थर्ड डे जब वो पढ़ाएंगे तो जो उन्होंने आज पढ़ाया और जो उन्होंने कल पढ़ाया वो उसको भी रिवाइज़ करेंगे, ठीक है. जो उन्होंने फोर्थ डे पढ़ाया और ये इनका कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा. इवन 1 साल बाद की कोचिंग यदि आप करके निकलेंगे तब भी आपकी फर्स्ट स्लाइड से जो स्टार्ट होगा दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्विक रिविजन एंड ही गिविंग अस अपॉर्चुनिटी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज समथिंग, ठीक है. इसके बाद है दोहराना, यानी कि आप किसी चीज़ को कितने ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर पा रहे हैं, ठीक है. स्मरण के अधिक से अधिक अवसर में हम एक चीज़ और ले सकते हैं कि आप किसी चीज़ का कोई कॉम्पिटिशन कर दिया, लाइक टेस्ट कर दिया, वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, किसी चीज़ को याद कर पा रहे हैं. संवेगात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए. ये नहीं कि आप अभी आज गुस्से में हैं, कल आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, परसों आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. ऐसे में आपका जो लर्निंग होगा वो हमेशा आपकी जो मेमोरी, किसी चीज़ को मेमोराइज करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो हमेशा आपकी अफेक्टेड रहेगी. और लास्ट वन इज कंसंट्रेशन. सी, कंसंट्रेशन इज लाइक बॉन्ड, ठीक है. किसी भी चीज़ से पहले आप किसी चीज़ के लिए सीखना भी शुरू करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन, आपकी फोकसिंग पावर आर सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as much as you can, and also press the bell icon so that you all can get upcoming notifications regarding this e-learning video channel. After my following videos, I'll discuss about kinds of memories, which short-term memory, which will include short-term memory, long-term memory, and so on. Okay. So short-term memory, for that आप लोगों ने सुना होगा, गजनी मूवी देखी होगी सभी ने. Okay. So in my next video, I will not discuss about गजनी movie. I'll discuss about the steps of memory or kinds of memory. ठीक है. So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com.